لیکن میرے پروگرام میں آپ دیکھتے رہتے ہیں, میں زحمت دیتی رہتی ہوں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کو. فیصل رضا عابدی صاحب نے میرے پچھلے پروگرامز میں, کیونکہ کافی وائرل ہو رہے ہیں, لوگوں نے مجھے بھیجے اور انہوں نے کہا, تو میں نے سوچا جب آج پروگرام میں وہ شامل ہیں تو میں پہلے ایک جھلک آپ کو وہ دکھاؤں کہ وہ کیا کہتے رہے, کیونکہ میری دانش میں تو وہ الزام ہی ہے. لیکن اب جب میں سانحہ 9 مئی دیکھتی ہوں تو اس کے تناظر میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں. پہلے آپ کلپ دیکھیے. فوج میں گروپنگ کرنا جس پہ یہ آج کل لگا ہوا ہے, کون آپ کا حکمران. تو یہ دو سارے وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف کروانا چاہتے ہیں. نہ یہ گروپنگ اس کی یہ کر رہا ہے. جب تک فوج میں گروپنگ نہیں ہوگی اس ریاست کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ گریٹر اسرائیل پہ کام کر رہا ہے, یہ پاکستان میں فوج کو کمزور کر کے یہاں طالبان ٹیک اوور کرائے گا. انارکی میں آپ پہنچ چکے ہیں, اسی نے پہنچایا ہے, یہی پہنچائے گا. یہ آگے فوج پہ دھڑا دھوس حملے کرے گا. اور اس کو میں بتا دوں, پورا پاکستان خاموش ہو, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں نے اس پہ پوری سیاست قربان کی. اگر تم فوج سے ٹکرے, میں میدان میں اتر کے تم سے ٹکروں گا اور تمہیں پتا چلے گا ٹکر دینے والا کون ہوتا ہے. پھر 10 سال بعد میں میدان میں آؤں گا اور پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ اس فوج کے اوپر حملہ کرنے والے کا ہم کیا انجام کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو, بالکل ہمارے کس نے مارا جناب؟ یہ ٹیررسٹ اور طالبان نے مارا نا, ٹی ٹی پی نے مارا نا. فوج کے بیانی ہے کہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے. بالکل یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کس نے چھوڑے حملے کرنے کے لیے؟ امریکہ نے چھوڑے. اس نے چھوڑے. عمران خان نے ہزاروں کی تعداد میں, اس دن ہم یہاں لائیو پروگرام کر رہے تھے جس دن اس نے ٹیررسٹ چھوڑے تھے. وہ تو بتایا تھا آپ نے, یاد ہے آپ کو. فوج اور اپنے لوگوں کی حمایت کرنا چاہیے. اس لیے کرتا ہوں کہ میں 2010 میں ہی جان گیا تھا کہ ان دا اینڈ آف دا لاسٹ آپ نے اسی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اس سیکٹر سے لڑنا ہے. اس لیے میں نے حمایت کی. ان کی لاشوں کو اہمیت دیں, ان کے شہداء کو اہمیت دیں, ضرورت ہے. ہم نے آخر میں یہیں کھڑے ہونا ہے. تو جب ہم نے 10 سال بعد کھڑے ہونا تھا تو میں 2010 میں کھڑا ہو گیا. اور مجھے ایجنٹ کا, تو اب یہ ایجنٹی تم گلی گلی کوچے کرتے ہوئے نظر آؤ گے. یہ ایجنٹی نہیں, یہ فرض ہے. بالکل اپنی افواج کے دفاع کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہم سب کا فرض ہے. بالکل یہ اس جنگ میں یہ مردوں کا میدان سجنے جا رہا ہے, گٹار والوں کا نہیں. یہ 2022 کی بات ہے. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, لیکن واقعی ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان پر جس طرح سے سوشل میڈیا کے تھرو حملے کیے گئے, پھر براہ راست جو حملہ کیا گیا کو کمانڈر لاہور کے گھر پر, پھر GHQ کے اوپر جو دروازے پر حملہ ہوا ہے, اسی سب تناظر میں بات کرنے کے لیے, اور یہ سازش واقعی سازش ہے بھی یا نہیں, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی. ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ فیصل صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے. یہ کلپ مجھے اس لیے دکھانا پڑ گیا کہ یہ وائرل کافی ہو رہا ہے, لوگ آپ کو بھی یقیناً کہیں نہ کہیں شیئر کر رہے ہوں گے. مجھے یہ فرمائیں کہ یہ سانحہ 9 مئی جب ہو رہا تھا تو آپ بھی اسی شہر میں ہوں گے, یہاں بیٹھے ہوں گے, ٹیلی ویژن کی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے. یہ کیا تھا سانحہ 9 مئی آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ میری محترم بہن, آپ نے موقع دیا. آپ کو بتاؤں کہ بڑے پہاڑ ٹوٹے ہم پہ, 15 سال مصیبتوں کے, چھاپوں کے, جیل میں, مطلب چھوٹے سے پنجرے میں 4 مہینے رکھا گیا, زہر دیا گیا جیل کے اندر, سب کچھ ہوا, لیکن اتنی اداسی نہیں ہوئی جو 3 دن سے یہ اداسی ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا, وہ آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. میں آج آپ کے سامنے اس کو کھولوں گا کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا. جی, مجھے اس بات پہ زیادہ حیرت اس لیے کہ 18 ملکوں کے اندر ہمارا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک کام کرتا ہے, FRA کا, اور ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو, CIA ہو, موساد ہو, را ہو, ان کے بالکل گلے کے اوپر موجود ہوتے ہیں. جہاں پاکستان کے خلاف کوئی چیز آتی ہے ہم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میں آج چاہتا تھا کہ گزشتہ عدالت کے ایک فیصلے پہ ایک میرا کیس زندہ ہوا, اس طرف آنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا غم بہت چھوٹا ہے, یہ ریاست کا غم بہت, ریاست کا غم ہے. بالکل درست. اور دوسرا اس کی وجہ یہ بھی اس طرف نہ آنے کی آج کہ آپ فیس نہیں کر پائیں گے, آپ کا چینل فیس نہیں کر پائے گا اس چیز کو, آپ پہ پابندی لگ جائے گی. لیکن بہرحال برے وقتوں میں آپ نے ساتھ دیا تھا, آپ کو قربانی کا بکرا نہیں بنائیں گے. ضمن کے اندر میں, چونکہ میں نے خود اعلان کیا تھا کہ 10 سال بعد میں میدان میں اتروں گا. ہاں, یہ آپ نے بالکل جی. میں FRA ریسرچ سیل کو احکامات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وائس آف شہداء پاکستان کا پرچم آویزہ کر دیا جائے. اچھا. آج سے ہمیں میدان میں تصور کیا جائے, ہر میدان میں موجود ہوں گے عملاً. اچھا. انشاءاللہ تعالی جمعرات کو کراچی پریس کلب میں شام 5 بجے وائس آف شہداء پاکستان اپنے روڈ میپ کا اعلان کرے گی. بڑی بات ہے فیصل رضا عابدی صاحب. بالکل, ہم میدان میں آ گئے. وعدہ کیا تھا نا کہ 10 سال بعد آئیں گے, ہم پورے 10 سال بعد آئیں. 10 سال بعد میدان عمل میں ہوں گے. پرچم آویزہ کرو, وائس آف شہداء پاکستان نمٹے گی. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ جمہوری مارشل لا. جمہوری مارشل لا. آپ کے ISPR کہہ رہے ہیں مارشل لا نہیں لگے, ہم نے کب کہا آپ مارشل لا لگائیں؟ جمہور کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں.
اور جمہور کی منشا نے اگر یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا تو تاریخ کا مورخ اس کو جمہوری مارشاء اللہ کے نام سے یاد کرے گا انشاءاللہ. مقابلہ کس سے؟ یہ تو دیکھو یار، آپ کوئی کنٹوٹوں سے تھوڑی ہے. آپ یہ ہوا کیا ہے، ذرا اس طرف آتے ہیں نا. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ کی دانش میں یہ کیوں ہوا ہے جناب؟ عمران یہ تو خان ہونا کی تھا گرفتاری کی وجہ سے. نہ اس کو غور سے تفصیل سے سنیں آپ، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی یہ کیا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے اندرونی خطرات، ایک ہوتے ہیں بیرونی خطرات. ٹھیک ہو گیا. اندرونی خطرات تھے آپ کو 30%، بیرونی خطرات تھے آپ کو 70%، جس پہ 17 ملک صبح دوپہر شام پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. لیکن ایک بھرم کی فصیل تھی سامنے اس کے، وہ اس سے ٹکراتے تھے گر جاتے تھے، ٹکراتے تھے گر جاتے تھے. وہ تھی افواج پاکستان. در حقیقت 9 مئی کو یہ بھرم کی فصیل کو توڑ دیا گیا، عالمی طاقتوں کے آگے ہمیں کمزور شکار بنا کے پیش کر دیا گیا. میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ یہ بھرم کی فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے میں ہمیں اپنے خون کے گارے سے اس کو تعمیر کرنا پڑے گا، بے شمار لاشوں کے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ویسے، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. نہیں وہ جو ہندوستان میں ہماری شادیانے آل بجے وہ تو اولاد، حیران ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست ہیں، وی آر ریڈی. ہم نے پہلے ہی لاکھوں لاشیں دی ہیں. ایک طرف لاکھوں لاشیں دینے والے پرامن احتجاج کر کے پاکستان کا کیا چہرہ پیش کر کے گئے، اور ایک طرف اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں کو نظر آتش کر دیا گیا. اہل لاہور کو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جن کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لائے تھے، خدا کی قسم مکافات عمل کی تحریر کو آسمان پہ پڑھو، یہی دہشت گرد تمہاری املاک کو بھی لوٹیں گے، بالکل اسی طرح اس کو جلائیں گے بھی. اس کے ذمہ دار تم لوگ. اور یہ فیل کیوں ہوا؟ اس طرف آتے ہیں، فیل بھی ہوا ہے، مؤخر ہو گئی. یہ عالمی جنگ مؤخر ہوئی ہے پاکستان میں. یہ عالمی جنگ کے آغاز کا دن تھا پاکستان میں، اور اس کے لیے تعین یہ کیا گیا تھا کہ اس کی گرفتاری. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں گزشتہ 3 سال سے اردگان دکھایا جا رہا تھا، ترکی کے اندر عوام کا ریئیکشن دکھایا جا رہا تھا، جس میں فوج کی گاڑیوں پہ اور فوج پہ حملے کیے جاتے تھے. اس کو 3 سال کا جو مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا، اس کا عملی نمونہ آپ کو 9 تاریخ کو سامنے آیا، جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا عوام میں، جلسوں میں، بار بار مائنڈ سیٹ بنایا گیا. اس کا مقصد یہ کہ پلان تھا، عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا، اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری. جو اس یہ بار بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے. در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی، لیکن 60% طالبان دہشت گرد بھی موجود تھے، جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا. جو میں چیخ کے مرتا رہا، یہ سن کے مزے لیتے رہے. تو سن کے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ انجام. سنیے ایک تو یہ فیل ہوا. کیسے؟ عالمی سازش آپ کہہ رہے ہیں کیسے فیل ہوئی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کیا گیا؟ اس کو ایک وائس ڈیسیجن لیا آپ کے آرمی چیف نے. بالکل یہ ان کے ایک تلخ فیصلے کے سبب مؤخر ہو گئی. بہت اچھی طرف لیا ہے، کیونکہ میں آپ سے سوال یہی کرنے والی تھی. ختم نہیں ہوئی یہ جنگ تو ہونی ہے، لیکن ایک بردبار فیصلے نے یہ تو میرے مولا علی کا قول ہے، زمانہ آخر کی جنگی وادی سندھ میں ہونی ہے. یہاں کے دریا انسانی خون میں تر ہوں گے 7 بار. یہ تو ہونی ہے. مؤخر ہو گئی. مؤخر ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک آرمی چیف کا وائس ڈیسیجن، ان کو ایک تلخ فیصلے کا وقت تھا، بہت زیادہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، میری کیلکولیشن میں نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے. اچھا، میں بھی حیران رہ گیا. اچھا، 2 وجوہات کی وجہ سے. بڑی بات ہے کہ آپ حیران رہ گئے. میں حیران رہ گیا. انہوں نے ایک تلخ ڈیسیجن یہ لیا کہ گولی نہیں چلانی. نہیں، گولی کیا کسی نے روکنے کی کوشش تک نہیں کی. لسن آپ، یہ پاکستان میں مس پرسیپشن کو کل کرنے کے لیے ہی میں میڈیا پہ موجود ہوں. صرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ ریئیکشن نہیں دیا. جائلو آنکھیں کھول کے دیکھو، نہ کور کمانڈر ہاؤس پہ دیا، نہ میاں والی پہ دیا، نہ جی ایس یو پہ دیا، نہ سرگودا پہ دیا، نہ چکدرا پہ دیا، نہ مردان پہ دیا، نہ پشاور پہ دیا، نہ مالاکنڈ پہ دیا، نہ اپر دیر پہ دیا. کہیں نہیں دیا. سواد بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گولی چلتی آرمی کی طرف سے تو یہ پروٹیسٹر کو نہیں لگتی، یہ پاکستان کی سالمیت کے قلب پہ لگتی، اور یہیں سے عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 2، سلام ہے بانیان پاکستان کراچی والوں. بے شمار زخم کھائے تم نے، بے شمار لاشیں اٹھائی، بے شمار ظلم برداشت کیے، لیکن اس عمرانی فتنے کو رد کر کے تم نے اور فوج کا ساتھ دے کے بانیان پاکستان کی اولاد ہونے کا ثبوت دے دی. یو مین کہ کراچی باہر نہیں نکلا؟ کراچی ہائٹ گریٹ. سلام ہے. سنیں، میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آ رہی ہوں. لیکن جس درد کا اظہار آج فیصل رضا عابدی کر رہے ہیں، میں خود ہوں
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। जो कुछ हुआ है 9 मई को वो तारीख का हिस्सा है। आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि खुदा करता कि ऐसा दिन ही ना आता कि हम ये दिन देखते, लेकिन बहरहाल वो दिन आया भी, लोगों ने देखा भी, और हमने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सेनेटर फैसल रजा आब्दी आज कुछ चीज़ों का इजहार कर रहे हैं, कुछ खदशात की बातें पिछले सालों में भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये बातें हमने पहले की थी, लेकिन हुकूमत जो है फैसल रजा आब्दी साहब वो गिरफ्तारी के दर पे है इमरान खान की, ये लेकिन वो नहीं हो पा रही। देखें, इमरान और उसके हवारियों ने तो जो किया वो किया, लेकिन इन 13 जमातों की मुनाफकत भी इस साने की बराबर की शरीक है। आप गौर करें, झगड़ा तुम्हारा किससे था? नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी से, फजल रहमान साहब से। हैं? उनके हजारों घर थे, उनके वजीरों के घर थे, किसी घर पे हमला नहीं हुआ। हमला तो तमाम शहरों में सिर्फ फौज पे हुआ है। वैसे उन पे भी नहीं हमला होना चाहिए था, लेकिन ये ना ये आलमी एजेंडा था। निशाना सिर्फ फौज है ये नहीं, इनकी खामोशी थी, इनको फेस करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था। ये कहाँ गायब थे? आवाम को फेस करना तो इनका काम है। आर्टिकल 245 तुमने 2 सूबों में लगा लिया, बिल्कुल लगा लिया। आप तो कह रही थी नहीं लगेगा, मैं आपसे कह रहा था कि मैं लगा के दिखाऊंगा, तो बाकी 2 सूबों में भी लगा हुआ है। मैं इदारे से दरख्वास्त करता हूं इधर भी लगाएं। इधर भी रोज की जिंदगी हराम और जीना हराम हुआ है, रोज की लूट मार मची हुई है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। यहाँ पर हमें बराबरी का सलूक करें हमारे साथ, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम आपके वफादार लोग हैं। नंबर 2, सैकड़ों लाशें थी कराची में, हजारों लाशें थी। देखें, लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए तो आलू, मूली, गाजर, प्याज, चावल, टमाटर, गंदम, इनकी कीमतों पे फर्क पड़ सकता है। अगर कराची बंद हो जाता, जो आलमी इदारों की कैलकुलेशन थी हमारे नजदीक जो हम तक पहुंची कि यहाँ हजारों लाशें हैं, जिसका सबब इदारा था कराची में, ये लाजमी उठेंगे इसके अंदर और ये कराची को फूंक डालेंगे। लेकिन बानियान पाकिस्तान की औलादों ने बिल्कुल वो उनका रवैया रहा जो पाकिस्तान के लिए डिजर्व करता है, जो उनके बुजुर्गों की कुर्बानी है। हमने बनाया है मुल्क, हम ही बचाएंगे। तो कराची से उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे इम्तिहान बहुत आएंगे। अच्छा, पूरी ताकत के साथ फौज के साथ खड़े रहना है। एजेंट है हम, हाँ एजेंट है। चलो, एजेंट जो होते हैं वो तो वजीर बने बैठे सारे। हम 12 साल से 4 बार जेलें भुगत के, जहर खा के, जहर खिला के पूरी सेहत तबाह कर दी गई हमारी। आज तक सेहत कंप्रोमाइज है मेरी। जेल में जो कहता है ना मुझे जहर दिया, इसने मुझे जहर दिया। किसने? आपके हुक्मरान ने। कौन से? इमरान खान ने। ये जो क्लिप आप दिखा रही हो उस वक्त ये वजीर आजम था जब मैं बता रहा था। मेरी बात सुने आप गौर से। मकसद क्या है, क्यों हुआ ये? मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ ने आने के बाद 2.5 महीने बाद अपने पोस्ट संभालने के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, खोलने का फैसला किया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इज्जत की आमदनी के साथ पाकिस्तान का रुख करना शुरू किया। ठीक है। 52 अरब डॉलर को जब वो कामयाबी से सर कर गए और 437 अरब डॉलर को वो चेज कर रहे थे, हर सूरत उनको रोकना था, उनके इस अमल को बर्बाद करना था। इसलिए सही वक्त चुना गया। सुनिए, गौर से सुने। इसके लिए लाजिम था कि इनको मुतनाज़ा बनाया जाता, इस अमल को रोका जाता। पाकिस्तान को खुद किफ़ालत के अपने पाँव पे खड़े होने से रोकने के लिए लाजिम था कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना के इदारे के अंदर बगावत उलझा के और पाकिस्तान को तालिबान से टेक ओवर करा देना था, जिसके बाद ईरान से जंग लड़ी जानी थी। तो मैं आलमी फार्मूला आपको बता चुका, ये भी बता चुका इस दिन में 3 लोगों की कुर्बानियाँ होंगी शदीद। पहला फौज, नंबर 2 शिया, नंबर 3 हर वो शख्स जिसके पास पैसा है। आप गौर करें, पाड़ा चनार में 7 असातिज़ा के सर काट दिए, ज़िबा कर दिया। बहुत ही, मैंने पिछले और ये बेगैरत सियासतदान जो अपने इख्तिदार के लिए धरने और रैलियां लेके निकले हुए, इनमें इतनी गैरत नहीं थी कि जाके वहां ताज़ियत करते। ये हुक्मरान है, ये जिम्मेदार हैं। और पाड़ा चनार वालों, तुम भी सुनो, ये आते हैं ना तो तुम इनको कंधों पे लेके घूमती हो, तो ये तुम्हारे पे क्यों आएंगे ताज़ियत करने? कुछ तुम भी गैरत पकड़ो ना। ऐसा नहीं करो ना, अब तुम उन पे एतबार करो जो तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां खड़े हुए हैं आज भी आकर, जो लड़ रहे हैं तालिबान से, जो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े। अगर ये दीवार टूट गई तो पाकिस्तानियों ये याद रखना, गैरतें भी महफूज नहीं रहेंगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे कंधे अपने कंधों पे डाल के ले जाएंगे। ये दहशतगर्द है। हर चीज को आर्मी चीफ को मैं एक बार फिर तमाम शोहदा पाकिस्तान के वारसीन की तरफ से गारंटी देता हूँ, तन मन धन से साथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 गलतियां हो रही हैं। अच्छा, वो क्या है और कौन कर रहा है? पहले तो ये बताएं कौन कर रहा है वो गलतियां। बस जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, मैं तो बता देता हूँ, वो खुद देख लें कौन कर रहे हैं। पहली चीज कि दज्जाल का कानून चल रहा है, एक आवाज़ को राइज किया जा रहा है, उर्दगान मुजीबुर रहमान, उर्दगान मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान इसलिए बताया जा रहा है इलेक्शन में अगर हार गया तो इसने कबूल नहीं करना, ठीक है। उर्दगान इसलिए बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम मारो फौज पे।
माइंडसेट बनाया जा रहा है, नहीं माइंडसेट क्लियर सामने आ चुका। नंबर 2, एक आवाज मुसलसल चल रही है इसकी और इसके हवारियों की, एक आवाज मुझ जैसे की मुसलसल दबा रखी है पीटीए ने तमाम सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करके, नहीं मूव होने देते हमारी पोस्ट को। तो ये इदारा देखे ना ये क्या हो रहा है। अगर एक आवाज चलती रहेगी तो वो तो फिर मालिक के कुल बन जाएगी। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। आप दलील की जंग को दलील से लड़ें। सही होगा। याद रखें, अगर दलील को आपने जोर ताकत दबाने की कोशिश की, दलील नहीं दबेगी। इतनी ताकत रखते हैं कि इनको दलाइल के साथ मुनाजरे का चैलेंज है। पीटीआई वालों आओ, किस चीज की लड़ाई है, आओ मुनाजरा करते हैं। अगर मुनाजरे में मैं जीता तो मुल्क में वो होगा जो मैं चाहूंगा, कानून के मुताबिक चलेगा मुल्क। जो वाइस ऑफ शोहदा का पहला असूल है, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। नंबर 2, इस आवाज को खोलें, ठीक है, ग्राउंड न्यूट्रल करें। आप ग्राउंड न्यूट्रल करके पीछे हटे, हम देखते हैं। नंबर 2, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि चोर का एहतसाब कभी चोर नहीं करेगा। ये 13 ठगों की बारात जो है, सारी जिंदगी इन्होंने लूट के खाया। अगर ये उसके करप्शन के मुकदमात, वो मुकदमात जो फॉरेन फंडिंग जो मैंने लाया, जो तोशा खाना का मैंने एस्टेब्लिश किया, वो भी डिक्लाइन कर गया सिर्फ इस वजह से कि ये ठगों की बारात उसका एहतसाब कर रही है। इसका मतलब ये सही केसेस नहीं प्रेजेंट कर पा रहे। नहीं, ये कर ही नहीं सकते ना, ये भी तो चोर हैं। ये कौन सा शरीफ और पारसा लोग हैं? ये जो कहते हैं हमने जेलें काटी, इन बेगैरतों से पूछो, सिर्फ इतना बताओ किस इल्जाम में काटी? ठगी के माल पे काटी, जमहूरियत या पाकिस्तान के लिए नहीं काटी। हम पर नहीं रखना ये तुम ये इल्जाम कि तुमने जमहूरियत या पाकिस्तान, वो बेनजीर भुट्टो के दौर थे शहीद के जो कटते थे जमहूरियत के लिए। उसके बाद जितनी जेलें काटी, जितने तुम पे मुकदमात बने, वो ठगी के माल के बने। नंबर 2, आप इसका एहतसाब करें मिलिट्री कोर्ट में। तमाम करप्शन का एहतसाब मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान में फौज दुनिया में पहले नंबर पे सलाम फंग और नीचे फंग करने के लिए नहीं है, अपने निजाम इंसाफ के लिए मशहूर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जितने दहशतगर्द पकड़े गए, इनका एहतसाब, इनका इंसाफ मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। उन्होंने मिलिट्री प्रेमिसेस में हमले किए हैं, इन अदालतों में नहीं। जिस तरह 22,000 दहशतगर्द 1 लाख पाकिस्तानियों के मारे हुए छोड़ दिए गए, यहां से ये भी छुट जाएंगे। नंबर 3, जब तक ये 13 चेहरे इसका मुकाबला कर रहे हैं जी, यही जीतेगा। 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कोई नया चेहरा आ गया ना, इसको ऐसे निगल के खा जाएगा जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को निगल के खाता है। ये 13 चेहरे इसके आगे नहीं चल पाएंगे। ये माइंडसेट राइज हो चुका है पाकिस्तान। यानी वोट, अगर वोटिंग इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर ये 13 ने मुकाबला किया, इन 13 के होते हुए तो मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं, जहां 13 चेहरे नजर आते हैं वहां तो 200 मील दूर से रहमत के फरिश्ते ही पलट जाते हैं कि कहां जा रहे हैं हम, किसके पास जा रहे हैं। अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बताइए तो नया चेहरा कौन है? जो भी हो, आवाम हमें तो नजर नहीं आ रहा भाई। देखिए सरफेस पे भी तो कोई चीज नजर आनी चाहिए ना। सरफेस पे तो कोई चीज नहीं है। 13 और 14 जमाते तो ये हैं। हाँ ठीक है, एक ये खुद है, ठीक है, इसके इलाही हैं, हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं मुझे तो नजर, आप बताएं तो ना। बस फिर मार्शाल्लाह लगाते हैं ना, 15वां चेहरा ही नहीं है तो मार्शाल्लाह लगवाते हैं। फिर हम उनको क्यों ना दें पाकिस्तान, जिनके बारे में हमें यकीन है कि जब तक ये मौजूद हैं, ये दहशतगर्द हमारी इज्जत, गैरत, माल, मुमलिकत के ऊपर हाथ नहीं आ सकता। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अच्छा चलिए, वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, लेकिन कुछ ज़ाहिर है जब कराची की बात हो रही है तो उस हवाले से, लेकिन आपने देखा होगा फैसल रज़ा आब्दी साहब, यहाँ पीपल बस सर्विस जो है उसको भी आग लगा दी गई। फिर बताया जा रहा है लोगों की जानिब से कि 8 करोड़ मालियत तक की एक बस थी, ज़ाहिर है उसको अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया इस तरह से। पहले तो मैं आपको बताऊं, इस बस की जो एक्चुअल मालियत है ड्यूटी देने के बाद, इस पे 1% ड्यूटी है। अच्छा ओके। ये है 2 करोड़ 15 लाख रुपए की बस। 20 लाख रुपए इंपोर्टर ने भी रख लिए, 2.5 करोड़ की बस हो गई। बाकी 5.5 करोड़ रुपए फी बस इसी वजीर की जेब में गए। ये 16-17 अरब रुपए का जो ये स्कैंडल है, अगले प्रोग्राम में पूरे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ पेश करूंगा मैं आपके पास। चलिए ये बात रहने, इसलिए कि मैं इलेक्ट्रिकल बसेस के ऊपर कंसल्टेंट था। ठीक है ना, ओके चलें इसको। अच्छा नंबर 2, मैं जरा वाइंड अप करूं इसको। देखें मेरी बात सुने, ये चीज तय है कि 2 फैसले थे आर्मी चीफ के हाथ में। ओके, या तौहीन को, आलमी तौहीन को, पाकिस्तान में तौहीन को अपने सीने से लगाते या रियासत बचाते। आर्मी चीफ ने तौहीन को सीने से लगाया और रियासत को बचा लिया। मैं इस तौहीन को अब शोहदा के वारसीन के साथ धोके दिखाऊंगा। ठीक है। नंबर 2, हम दुनिया में आते हैं, हमारा मोटो क्या है? औलाद। हर आदमी अपनी औलाद के लिए जीता है, उसके मुस्तकबिल के लिए जीता है, उसके मुस्तकबिल को बनाता है, उसको संवारता है, उसको चलाता है, उसको आगे लेके जाता है, क्योंकि वो उसकी नस्ल है।
इसीलिए ना ये लूट मार, ये रिश्वत सतानी, ये हराम माल, ये आमदनी किस लिए की जाती है? इनको बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए। तो मैं पाकिस्तानियों से आज पूछता हूँ, ये लूटने वालों के, ये आग लगाने वालों के ये चेहरे तो देखो ज़रा गौर से, तुम्हारे अरीब करीब थे। और रसूल खुदा की उस निशानी पे जाओ जो खारजियों के हुलिये बताए थे। तुम खारजियों के साथ चल रहे हो। तुम सोचना कि कब्र में तुम जाओगे तो तुम अपनी ये औलाद को किस माहौल में छोड़ के जा रहे हो। पाकिस्तान में तुम कब्र में भी नहीं जी पाओगे। खुदा का नाम लो, इसकी तहजीब, सकाफत और माशरे को जिंदा करो। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानी बन के चलाओ। बिल्कुल जरूरत है, वो बहुत किरदार अदा जरूरत करो जो कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इनको जो दहशतगर्द नहीं कह रहा, वही सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। और दहशतगर्द क्या होते हैं? दहशतगर्द सिर्फ कराची वाले होते हैं, दहशतगर्द सिर्फ लालू खेत वाले होते हैं, दहशतगर्द के नाजमाबाद वाले होते हैं, दहशतगर्द एयरवाई को आग लगाने वाले होते हैं। दहशतगर्द वो होते हैं जो दहशत पैदा करे पाकिस्तान की आवाम में, जो कानून शिकनी करे, उसको दहशतगर्द कहना चाहिए। इस फार्मूले को खत्म करना चाहिए। फार्मूले का आगाज कहां से हुआ? इन अदालतों में जब तालिबान दहशतगर्दों को लाके खड़ा किया जाता था तो यही जज कहते थे ये तो बड़ा मासूम लगता है शक्ल से। वही अल्फाज आज भी थे कि तो मासूम बच्चे थे। मतलब हमें लाखों लाशें दे दी तुमने यहाँ शहर में, और वो दहशतगर्द नहीं, हम दहशतगर्द, बानियाने पाकिस्तान दहशतगर्द। जब हमारे बुजुर्ग ये मुल्क बना रहे थे कुर्बानियां देके, तुम्हारे बुजुर्ग लुंगियां पहन के उस वक्त भी मछलियां पकड़ रहे थे। हमसे पूछो पाकिस्तान कैसे बना? हमने बनाया है पाकिस्तान, और इसको बचा के दिखाएंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था 25 करोड़ आवाम को फौज बनाऊंगा। आज से काउंटडाउन शुरू करो। साल के अंदर अंदर आलमी ताकतों को दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में फौज कितनी है। और यह भी वादा किया था दहशतगर्दों, शाम और इराक की शिकस्त भूल जाओगे, इतनी मार मारूंगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, तैयारियों का आगाज किया जाए। ये इंपॉर्टेंस है, अब मैदान में मुकाबला होगा। इस बात की अहमियत अपनी जगह मौजूद है कि जो रियासत बचाई है अफवाज पाकिस्तान ने, इस पर सलाम पेश करना चाहिए। और जो ये टर्मिनोलॉजी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि ये कही गई है दहशतगर्दी, और वाकईतन मुल्क में दहशतगर्दी के, मैंने कहा ना, सानियात से भरी पड़ी है तारीख, लेकिन ये खुली दहशतगर्दी थी जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और बार बार कहा जाना चाहिए कि ऐसी दहशतगर्दी को मुल्क में फरोग नहीं देने दिया जाएगा। अच्छा, एक दो चीजें मैं सेंटर फैसल रज़ा आबदी साहब आपसे पूछना चाह रही थी। एक तो ये मुझे जरा फरमाएं कि जो बातें आप यहाँ पर बैठकर करते हैं, और उसका ज़ाहिर एक पूरा माजी भी है, हम काफी अरसे से प्रोग्राम आपके साथ करते हैं, आपको जहमत देते रहते हैं, आपकी इन सारी बातों का किसी किस्म का कोई किसी और जगह से तायीद या आपकी बात को ये कहना कि हाँ कि उन्होंने साहब ने कही है, मैंने कहीं सुना नहीं है ऐसा? क्यों? 1400 साल से ये मसला है। जहां मेरा नाम लेते हैं ना, इनकी जुबान पे आते हैं, वहां इनके निकाह टूट जाते हैं। सबसे बड़ा मसला। आप इतने खतरनाक हैं? मेरा नाम सैयद फैसल रजा आबदी, आप सैयद और आबदी हटा दो, कोई इशू नहीं। चलिए किसी और रोज इसको मैं इस पर बात कर लूंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब अब जिस पोजीशन पर चले गए हैं, क्योंकि ये तो मतलब रेड लाइन ही थी ना कि आपने हमला करवा दिया, अब वो साबित हो नहीं हो वल्लाह आलम बिसवा। तालिबान टेक ओवर इसी के हाथ में, वो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक मिनट ना, अब इन हालात में इमरान खान को एक कदम पीछे जाकर, मैंने सुना है ये नैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, लोग कह रहे हैं इन्होंने मजामत की है और अब ये बैकडोर जो है वो डील भी कर ले। देखिए, ये जो बार बार कहते हैं ना मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मैं आपको ये गारंटी से, मेरी रिसर्च कंफर्म करती है, इसको शहादत नसीब ही नहीं होनी। इसकी जब भी मौत होगी कोकीन की हैवी डोज लेने से होगी, आप बेफिक्र। नहीं, मुझे ये तो बता के जाए, इनसे बात करें, इनको एंगेज करना जरूरी है इमरान खान साहब को? कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। तो रियासत जो कानून कहता है, कानून पे कानून ही बदमाश है, लिख दो या वर्दी पे, कानून सबसे बड़ा बदमाश है। देखो कैसे सही सुने, मैं फैसल रजा आबदी कराची एयरपोर्ट पे पान भी फेंकता हूँ, सिगरेट भी फेंकता हूँ, पीक भी मारता हूँ, लेकिन 1.5 घंटे बाद जब मैं दुबई पे उतरता हूँ तो उगलदान तलाश कर रहा होता हूँ। वजह क्या? आदमी तो मैं वही हूँ, कानून की वालदस्ती। नहीं, मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ है भाई। जो कानून कहता है उसके मुताबिक अमल करें ना। देखें, ये इसके साथ जो स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई, उसी पे मैं जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी अदलिया जो नीचे से चौथे नंबर पे ना, ये फहरिस्त में भी लाने लायक आलमी अदालत नहीं छोड़ेगी इनको। तो अब चले, आप वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जुमेरात को कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब क्या करेंगे? दो चीजें याद रखिएगा, ये है इख्तिदार की जंग। अच्छा, ये इख्तिदार की जंग है, ये बैठे हैं, वो धरना दें, फला दें, ये सारी अपनी कोशिशें कर लें, आखिर में मैं आऊंगा, आप बेफिक्र। आप आखिर में आए, पहले आए, सर आंखों पर आए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इमरान खान साहब को एक कदम पीछे हटना, वो आपको नजर आ रहा है कि वो एक कदम पीछे हटेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, गलत हुआ, GHQ पे हमला नहीं होना चाहिए था, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला नहीं होना चाहिए था, मियांवाली में ये नहीं होना चाहिए था, स्वात में नहीं होना चाहिए था, दीर में नहीं होना चाहिए था? ये सारी चीजों के लिए एक शर्त लाजिम है, खून में गैरत होनी चाहिए।
अगर गैरत हुई तो उसको करना चाहिए। इसी पाकिस्तान ने इसको ये मुकाम दिया, इसी पाकिस्तान ने इसको ये रुतबा दिया, और ये तमाम एंकर इसको वली अल्लाह बना के पेश करने में मुलविस रहे हैं। तो बाद में पर्दा हटा तो ये इनकी काबिलियत थी इन एंकरों की कि ये लीडर तलाश करने में भी इतने नाकाम हुए। मेरी बात सुने, कानून के मुताबिक अमल करें। सजा और जजा के अगर कानून पे आपने नहीं चलना तो फिर सबको आजाद छोड़े ना, फिर मैदान में जो वही होगा जो ताकतवर होगा वो बादशाह होगा। अच्छा ओके, आपने जंगल का कानून लाना है या कानून की हाकमियत चाहते हैं? कानून की हाकमियत। गिरफ्तार करें किसको? इसी को, इमरान खान को। बिल्कुल। आपने देखा नहीं 3 दिन पहले क्या हुआ? इसका नाम अल्ताफ हुसैन रख दे, खत्म बात, दैट्स ऑल। कैसे होता है गिरफ्तार? 5 मिनट में पता चलेगा फिर आपको। रखिए इसका नाम अल्ताफ हुसैन, इमरान खान उर्फ अल्ताफ हुसैन। लोग तो कह रहे हैं हम अपने नाम के आगे उर्फियत लगा लेते हैं इमरान खान। नहीं, इमरान खान, इमरान अहमद खान नियाजी उर्फ अल्ताफ हुसैन, फिर ये लिखें, देखें कैसे होता है काम। 5 मिनट में आप कह रहे हैं गिरफ्तार करें इनको, बैन करें इनको। चाहिए, ये किसने कराया है सब कुछ? ये किसने माइंड मेकअप किया? मैं आपको ये पूरा फार्मूला बताता आ रहा हूं कि इसने अपने जलसों के अंदर वो तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे लोग पहुंच गए। तुर्की का अर्दोगान मैं बताता था, ये फौज पे हमले मैं बताता था, ये बगावत में मैं उकसाता था। कैसी बातें कर रही हैं आप? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ ले, पूरी दुनिया इसको जिम्मेदार करार दे रही है, अलावा आपके चंद सहाफियों के। अच्छा, सहाफियों को भी छोड़ देना अब आप, वो भी छोड़ दे, चले अब अदालत भी छोड़ दे, सहाफी भी छोड़ दे, तो फिर आलू भुट्टे प्याज की बात करते हैं आप। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने अभी कहा कि क्या नाम रखे उनका, इमरान खान उर्फियत जो भी है, अल्ताफ हुसैन। हाँ, ये रखे। तो अल्ताफ हुसैन के साथ क्या ज्यादती हो गई आपको लगता है? नहीं हुई। नहीं, देखें मेरी बात सुने, ताकत के जोर पे किसी को ना दबाएं। आप किसी की सियासी सोच को नहीं कुचल सकते, आप आर्गुमेंट पे चलें, दलील से। देखिए, आवाज से बड़ा कोई हथियार तो नहीं ना। रसूल खुदा का कौल है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। बिल्कुल। तो हमारे जो इस मुल्क के मर्द हजरात हैं, वो ये सारा जिहाद किचन में अपनी औरतों के कानों में तो कर लेते हैं। बाहर आवाज उठाओ ना, हकीकत को हक बोलो। अगर तुमने इसको दहशतगर्दी करार नहीं दिया तो तुम्हारी नस्लें जहन्नुम में जिएंगी, जिनके लिए हराम कमा कमा के पाला है तुम लोगों ने। देखो क्या होता है फिर इसी खित्ते के अंदर मकाफाते अमल देखोगे बहुत जल्द। ये जंग मौखिर हुई है, होगी जरूर, होगी। हाँ। और इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए आपके? करना चाहिए ना। तो नहीं, जब आप पे तोशा खाना का मुकदमा है, फला मुकदमा है, फला मुकदमा है, फला लूट है, फला मार है, फला है, तो फिर फला का तो अंजाम सिर्फ फैसल आब्दी को गिरफ्तार करना है, इसको पिंजरे में रखना है। लेट्स सी कि इमरान खान साहब की अगर दोबारा गिरफ्तारी की हुकूमत किसी तरह के मुकदमे करती है और उन मुकदमों में कोई जान होती है, मेरा ख्याल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं और मुकदमात को उस तरह से जिस तरह टैकल किया जा रहा है, परसू किया जा रहा है, उसमें जान दिखाई नहीं देती है। फैसल अजादी साहब नहीं है जान। अच्छा। मसला ये है कि परसू चोर कर रहे हैं, परसुएशन का मसला। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए भी आपका, सेंटर फैसल अजादी साहब। प्रोग्राम